Students, in this video I will give you an overview of centrifugal pump. Basically, we know that what turbine works. Turbine converts the water power into mechanical power. Okay, while pump just function just reverse to the turbine. Basically, centrifugal pump converts the shaft power into the water power, and water power is in the pressure form of energy. Okay, now let us see. Centrifugal pump is a reverse of inward reaction turbine, already told you, and it works on the principle of force vortex motion. It has high discharging capacity, can be used for lifting highly viscous liquids. Now, what is the force vortex principle? Actually, what happens at the larger diameter? Suppose that d2 is greater than d1, then what happens? We have the formula for tangential velocity is equal to pi dn by 60. Okay, it means u is directly proportional to d. It means if we write the difference between the kinetic head due to the rotational motion, this will happen. Okay, so this value will be greater than hm, then function will be start. Means if the value of d2 is greater than d1, it means आउटर डायमीटर और लार्जर डायमीटर पे क्या होगा, प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी, कम डायमीटर पे प्रेशर एनर्जी क्या होगी, कम होगी. जिससे क्या भी होगा, जिससे एक्चुअली क्या होता है कि हमारा वाटर को हमको लिफ्ट कराना है. कहाँ पे? ये ज़्यादा डायमीटर वाले पे लिफ्ट कराना वाटर. तो यहाँ पे हमको प्रेशर एनर्जी की वैल्यू क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए. तो ये डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाटर लिफ्ट हो जाएगा ईजिली. ओके, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमिंग. बेसिकली क्या होता है, सक्शन पाइप में जब एयर चला जाता है तो वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम प्राइमिंग करते हैं सक्शन क्रिएट करने के लिए. और टेक्निकली कैसे इस चीज़ को पढ़ेंगे वो देखेंगे. इट इज़ एन ऑपरेशन इन विच लिक्विड इज कम्प्लीटली फिल्ड इन द चैम्बर पम्प so that the air or gas or vapor from the portion of the pump is drain out and no air pocket is left. Okay, so to establish the vacuum in suction pipe, priming is necessary for centrifugal pump. Here we can see the head versus discharge as well as power versus discharge relations. For radial vane, head is constant with respect to discharge. For backward curved vane, what varies, head varies with negative slope when the discharge increases. It means when the discharge is larger, then the head is minimum in case of backward curved vane. And mostly backward curved vane uses. While forward curved vane, when the discharge is 0, the head value placed at that point, but when the discharge is increasing, then the value of head is also increases. Okay, now this diagram represents the graph in between the head as well as discharge. Here we can see some representation. Actually this one is a power versus discharge. Power for radial curved vane with positive flow, and it gives a straight line, while the backward curved vane, this curves shows, and for forward curved vane, this curve shows the relation in between power as well as discharge. Here we can see the different type of pump based on the head, range of head. If the head lies below the 15 meter, then low head pump. If head lies in between 15 meter to 40 meter, then medium head pump. If head is above the 40 meter, then high head pump is used. Okay. Now on the behalf of specific speed, the variety of pump may vary from radial flow. When the 10 to 80 rpm, then the pump is radial flow.
when the speed lies in between 80 to 160 rpm, then it is mixed flow, and when it is in between 160 to 450 rpm, then it is axial flow turbine. Okay, already told you in previous lecture, but here I will give you an overview. Different type of efficiencies. एक्चुअली क्या होता है एफिशिएंसी का, हम एक आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे क्या होता है. बेसिकली इफ़ वी ड्रा अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये क्या है, ये डिस्चार्ज पॉइंट है, डिस्चार्ज पॉइंट. एक सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाते हैं इस तरीके से. साफ्ट पोर्शन, सेंटर का पोर्शन होगा, इसको क्या कहेंगे, आई कहेंगे. यहाँ से क्या भी लगा होगा, यहाँ से सक्शन पाइप लगा होगा. ठीक, ये कहाँ डिप होगा, ये सम्प लेवल में डिप होगा. डिप इसलिए है कि वहाँ पे क्या भी हो, वहाँ पे एटलीस्ट वैक्यूम क्रिएट हो पाए, क्योंकि वैक्यूम ज़रूरी है. ठीक, वैक्यूम ज़रूरी नहीं होगा तो सक्शन नहीं क्रिएट होगा और वाटर ऊपर की ओर सक नहीं होगा. ये कौन सा डिलीवरी पाइप, और ये हेड कौन सा हो जाएगा, डिलीवरी हेड. ठीक, नाउ लिसन. इनिशियली द शाफ्ट इज माउंटेड एट द सेंटर, इज रोटेटेड बाय ऑन द स्विच फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स सबसे पहले शाफ्ट पावर आता है, फिर शाफ्ट पे इम्पेलर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे इम्पेलर्स लगे हुए हैं. जब शाफ्ट रोटेट करता है तो क्या भी रोटेट करता है, इम्पेलर्स. तो वर्क डन बाय इम्पेलर. ठीक, उसके बाद जब इम्पेलर रोटेट करता है तो क्या होता है, प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर जो होता है बढ़ता है, और वाटर क्या करता है, लिफ्ट करता है. फाइनली हमको क्या मिलता है, वाटर पावर. ठीक, तो सॉफ्ट पावर और वर्क डन जो एफिशिएंसी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी. वर्क डन और सॉफ्ट वाटर पावर जो एफिशिएंसी देता है इसको क्या कहते हैं, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी. और सॉफ्ट पावर और वाटर पावर मिल के जो एफिशिएंसी देता है इसको क्या कहते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी. ठीक, तो यही चीज़ जो है ओवरव्यू में भी समझाई गई है. यहाँ पे अगर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करें तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, GHM/VW/U2. ठीक, GHM/VW/U2 कैसे आया. एक्चुअली क्या होता है, जो अगर हम वाटर पावर की बात करें तो वो क्या होता है, ρQ/GHM, और रनर पावर की बात करें ρQ/VW/U2. तो ρQ से ρQ कैंसिल हो जाता है, ऊपर का वाटर पावर का GHM बचता है, नीचे जो इम्पेलर पे वर्क है उसको क्या बोलता है, VW/U2. तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, इस फार्मूले से. ठीक, मैनोमेट्रिक हेड अपॉन मैनोमेट्रिक हेड प्लस लॉसेज इन द पंप. ये लॉसेज इन द पंप नीचे दिया हुआ है, ऊपर क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये कंसीडर नहीं होगा आउटपुट में. ठीक है, ये हमारा यूज हो जाता है इसमें. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में एक्चुअल डिस्चार्ज कितना मिल रहा है और इनपुट पे कितना डिस्चार्ज है. ठीक है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी, बेसिकली मैकेनिकल एफिशिएंसी में भी डिफाइंड द रेशियो ऑफ इम्पेलर पावर टू द सॉफ्ट पावर. एंड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द ओवरऑल एफिशिएंसी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एज वेल एज मैकेनिकल एफिशिएंसी. ओके, now we see some working proportions of centrifugal pump. Work done per second is equal to ρQ/VW/U2. Already told you in the case of centrifugal pump VW1 is equal to 0. क्या होता है, अगर हम वर्क डन पर सेकेंड का फार्मूला बताएं तो क्या होता है, ρQ/VW1U1 प्लस VW2U2. इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप ये 0 हो जाता है, ये सामने होता है बस ρQ/VW2U2 हो जाता है, वर्क डन पर सेकेंड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप. ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ρQ/VW2U2, क्योंकि डिस्चार्ज रेडियल होता है इनलेट पे, तो VW1 क्या होता है, 0 हो जाता है. स्टैटिक हेड HS इज इक्वल टू सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड. मैनोमेट्रिक हेड ऑलरेडी टोल्ड यू, ये VW2U2 अपॉन G में जितने लॉसेज होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. या मैनोमेट्रिक हेड डिलीवरी पाइप में और सक्शन पाइप में जो टोटल हेड है उनका डिफरेंस. और एक और फार्मूला मैनोमेट्रिक हेड का हो सकता है, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड प्लस हेड ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेज इन सक्शन पाइप प्लस हेड ड्यू टू
frictional losses in delivery pipe plus velocity head in delivery pipe. Okay, these are some representation which I have already discussed, and further we can sub formulas as speed ratio, flow ratio. Flow ratio lies in between 0.1 to 0.25, 0.95 to 1.25. Remember, optimum efficiency impeller should be designed work velocity at inlet 0 for maximum efficiency भी W1 0 होता है. ठीक है. पंप विल स्टार्ट, पंप जब स्टार्ट होता है तो प्रेशर हेड किसके बराबर होता है? मिनिमम स्पीड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम आपको बता चुके हैं ये किसके बराबर होता है? मैन्योमेट्रिक हेड के बराबर होता है. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्चुअली स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप may be defined as the speed of a turbine which are similar in geometry and dimensions of that pump which delivers unit discharge under the unit manometric head. This formula represents the specific speed for centrifugal pump, and for multi-stage centrifugal pump already told you the total head upon number of stage represents multi-stage pump head. The pump may be connected in series as well as parallel. Okay, तो जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो हेड को एनहेंस करते हैं, और जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो क्या करते हैं? डिस्चार्ज को एनहेंस करते हैं. जबकि एक को एनहेंस करते हैं, एक को कांस्टेंट रखते हैं. तो सीरीज में डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं, हेड को एनहेंस करते हैं. पंप में क्योंकि पी के बाद क्यू आता है तो ऐसे ही हम याद करते हैं, पी के बाद क्यू आता है तो क्यू को एनहेंस करते हैं और हेड को कांस्टेंट रखते हैं. ठीक. अब मॉडल लॉस का क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप डिज़ाइन करने के लिए ये रिलेशनशिप यूज़ किया जाता है. पहला स्पीड कोएफिशिएंट, हेड कोएफिशिएंट, डिस्चार्ज कोएफिशिएंट, पावर कोएफिशिएंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. एंड कैविटेशन इन द पंप इज रिप्रेजेंटेड बाय द थॉमस कैविटेशन फैक्टर. क्या होता है? जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू काफ़ी कम होती है, वेपर प्रेशर से वैल्यू कम होती है, तो क्या होता है? वहाँ पे कैविटेशन होता है. ठीक है. और द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स onset of cavitation: high runner speed, high temperature, less available NPSS. These are some reasons for cavitation. Okay, now some overview here we can see for the reciprocating pump, because सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो मोशन होता है फ्लूइड का वो रोटेशनल होता है. रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो मोशन होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है. डिस्चार्ज क्या होता है? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज Ln/60, वेयर कैपिटल A इज द सिलेंडर एरिया, L इज द stroke length, N is the speed of the reciprocating pump. When the double acting pump is considered, then the discharge is just 2 times in case of for single acting reciprocating pump. Okay, work done बेसिकली रो क्यू GH होता है तो H की जगह स्टैटिक हेड प्लस डिलीवरी हेड हो जाता है. ठीक है. इस तरीके से स्लिप क्या होता है? एक्चुअल और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का डिफरेंस किसका उसकी रिलेटिव वैल्यू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के साथ क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लिप. और जब रिलेटिव टर्म को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है? परसेंटेज स्लिप. ठीक. और यही जो इसमें एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का जो रेशियो होता है इसको हम क्या भी कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. ठीक. और एयर वेसल का ऑलरेडी हम वीडियो पहले भी डाल चुके हैं. बेसिकली एयर वेसल का यूज़ करने से क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप को फ्रिक्शन के अगेंस्ट कम काम करना पड़ता है. ठीक है. तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. ठीक. हियर वी कैन सी रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर यूज्ड टू लिफ्ट वाटर अगेंस्ट हाई हेड एट लो डिस्चार्ज. एयर वेसल इज यूज्ड टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट. इट मीन्स मीन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. To save a considerable amount of work and to run the pump at a high speed without separation. Separation already discuss कर चुके हैं. Advantage of multi-cylinder pumps are that the pump even without air vessel deliver liquid more uniform as compared to single cylinder pump. Okay. A percentage of work saved in single acting pump 84.2%, while in double acting reciprocating pump 39.2%. The length of the suction pipe in pipe cannot exceed 10 मीटर. सक्शन पाइप की लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा ही नहीं होती. ठीक. नेट पॉजिटिव सक्शन हेड
is a pressure head above the vapor pressure of liquid at the impeller entry. NPSS is very important for the life of centrifugal pump. This value is designed by the designer to overcome the cavitation, because cavitation affect the centrifugal pump and it loses the life of centrifugal pump. That's why the efficiency of centrifugal pump may be decreases. So in this way I represent a video in regarding the overview of centrifugal pump as well as the reciprocating pump. I think the differentiation is very clear that where is centrifugal pump is used and where the reciprocating pump is used. In case of centrifugal pump, velocity triangle is used, while in case of reciprocating pump, indicator diagram is used. Okay, thank you.